तो ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି କି ତାଙ୍କ आदेश अनुसार ये को करिपारे। क्लास हिंदी में रहेगा, मैं उड़िया में पढ़ूंगा लेकिन क्लास रहेगा हिंदी में। ततः कलो संप्रवृत्ति सम्मोहाय सुरा द्विषा बुद्धो नाम्नाञ्जनः सुतः किकटेषु भविष्यति ततः कलो संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धो नाम्नाञ्जनसुतः किकटेषु भविष्यति ततः कलो संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धो नाम्नाञ्जनसुतः किकटेषु भविष्यति ततः कलो संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धो नाम्नाञ्जनसुतः किकटेषु भविष्यति। कि प्रभु माने पढ़िया चाहिए। ततः कलो संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धो नाम्नाञ्जनसुतः किकटेषु भविष्यति ततः कलो संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धो नाम्नाञ्जनसुतः किकटेषु भविष्यति। के माता पढ़िबे। ततः कलो संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धो नाम्नाञ्जनसुतः किकटेषु भविष्यति। माता ततः कलो संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धो नाम्नाञ्जनसुतः किकटेषु भविष्यति ततः तत्परे कलो कली जुगरे संप्रवृत्ते आसिला परे सम्मोहाय मोहित करिबा निमित्त सुरः देवता द्विषां जो माने ईर्ष्यालु बुद्ध भगवान बुद्ध नामना नामक अज्ञानसुतः अज्ञानर पुत्र भगवान बुद्ध किकटेषु गया प्रदेश रे भविष्यति हेबे। अनुवाद बाय श्री श्री प्रभुपाद की जय। तत्परे कलिजुगर प्रारंभ रे अज्ञानक पुत्र रूपे भगवान बुद्ध रूपे प्रभु गया प्रदेश रे आविर्भूत हेबे। भगवत विद्वेषी मानंकु सम्मोहित करिबा हेबो तांकर आविर्भावर उद्देश्य। भावार्थ भगवान बुद्ध परम पुरुष भगवानंकर एक शक्तिशाली अवतार अटंती। से अज्ञानंकर पुत्र रूपे गया प्रदेश रे आविर्भूत होइथिले। से अहिंसा संबंधी स्वमत प्रचार करिथिले एवं वेदानुमोदित प्राणी हिंसायुक्त यज्ञ प्रथार खंडन करिथिले। बुद्धदेवंकर आविर्भाव समय रे साधारण लोके नास्तिक थिले एवं सेमाने मांसाहार प्रिय थिले। वैदिक
ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ନାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳ କଂସେଇଖାନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅବୋଧ ଗତିରେ ପଶୁବଧ ଚାଲିଥିଲା। ଦିନ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ହୃଦୟ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଅହିଂସା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କଲେ। ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ ସେ ବୈଦିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରାଣୀ ହିଂସା ବା ପଶୁବଧ କଲେ କି ପ୍ରକାର ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୁଷ୍ପରିଣତି ହୁଏ ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। କଳିଯୁଗର ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସହୀନ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅହିଂସା ଏବଂ ନୈତିକ ଜୀବନ ଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଭଗବତ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ସୋପାନ। ସେ ନାସ୍ତିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୋହିତ କଲେ କାରଣ ସେ ନାସ୍ତିକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବାରୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧଦେବ କି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର କରୁଣା। ସେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ କରାଇଲେ। ପରପଟ ବଡ଼ ଅଛି, ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବେ। ସରି ମୋ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ପୂର୍ବରୁ ପଶୁବଦ୍ଧ ସମାଜରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେ ପଶୁ ହିଂସାକାରୀମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ବୈଦିକ ଯଜ୍ଞ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାରୁ ଦେବ ଶିକ୍ଷା ନିଆଗଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ବେଦର ଅନିୟମିତ ପାଠକମାନେ ତାହାର ଅଳଙ୍କାରିକ ଭାଷାକୁ କେବଳ ଗ୍ରହଣ କରି ମାର୍ଗଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷିତ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଗୁରୁ ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାରୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭ୍ରମିତ ହିଁ ହେବେ। ଏମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ସମ୍ବନ୍ଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିଁ ସବୁକିଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ଶ୍ଲୋକ 15-15 କହନ୍ତି, ବୈଦେଶେ ସର୍ବେ ଅହମେବ ବେଦ୍ୟୋ ବେଦାନ୍ତ କୃଦେବ ବିଦେବ ଚାହମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ବେଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ଜୀବକୁ କ୍ରମଶଃ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ପଥରେ ଆରୂଢ଼ କରାଇଥାଏ। ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ବା ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା, ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ଯେତେବେଳେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାବହାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଫଳତଃ ଜୀବନର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ସୁଗମତା ପୂର୍ବକ ସାଧିତ ହୁଏ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବେଦର ଅପ୍ରାମାଣିକ ପଣ୍ଡିତଗଣ କେବଳ ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଫଳତଃ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଉନ୍ନତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଲକନ୍ଧଦାର ପଡ଼ିଥିବା ନାସ୍ତିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଆସ୍ତିକତାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ପଶୁହିଂସା ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ରୋକିବା ନିମିତ୍ତ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗରେ ପଶୁହିଂସାକାରୀ ଭୟାନକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଟେ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପଶୁହିଂସାକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ବେଳେବେଳେ ପଶୁ ବା ଜୀବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପଶୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ଉଭୟେ ପଶୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ କହିଲେ, କେବଳ ପଶୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସନ୍ଦେଶକୁ ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜନସମାଜ ଯଦି ଭଗବତ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ନିୟମ ହେଲା ଉପରେ କୁହାଯାଇଥିବା ପଶୁ ହତ୍ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା।
भगवत प्राप्ति सहित पशु हत्यार कौन संबंध नहीं, एपरी कहवा मूर्खता अटे। कलिजुगर कृपारु ए भयानक सिद्धांतधारी तथा कथित अनेक सन्यासी होइछन्ति, जे माने वेदर बाना धरी पशु हत्यार प्रचार करुछन्ति। ए विषय रे आलोचना श्री चैतन्य महाप्रभु एवं मौलाना चांदकाजी साहेबଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତ ହୋଇ ସାରିଛି। वेदोपदिष्ट पशुबद्ध यज्ञ उच्छृंखल अनियमित कंसेई खाना र पशु हत्या ठारू भिन्न अटे, कारण असुर माने एवं तथाकथित वेदज्ञ पंडित माने वेदरे पशु हत्या र प्रमाण उपस्थापन करिसंती। भगवान बुद्ध बाह्य रूप रे वेदर प्रामाणिकता अस्वीकार करि देथिले। भगवान बुद्धंकर ए प्रकार देव अस्वीकृत मनुष्य को पशु हत्यार पाप रु रक्षा करिबा निमित्त तथा निरीह पशु को मध्य सेमानंकर बड़ भाईंकर गर्वर वृत्तिर शिकार रु रक्षा करिबा निमित्त उद्दिष्ट अटे, जे माने कि बराबर अंतरराष्ट्रीय भातृभाव शांति न्याय तथा साम्यवादर ध्वनि करुछंती। जे पर्यंत पशु हिंसा अच्छी से पर्यंत कौनसी न्याय नहीं। भगवान बुद्ध यहाकू संपूर्ण रूपे बंद करने को इच्छा कले, तेणु तांकर अहिंसार सिद्धांत केवल भारत रे नुहे भारत बाहरे मध्य प्रचारित होइथिला। व्यावहारिक दृष्टि भगवान दर्शन को एक नास्तिक दर्शन बोली कहा जाइछि, कारण सेथिरे भगवानक मान्यता नहीं। पुनश्च ए दर्शन मध्य वेदर प्रामाणिकता को अस्वीकार करिअछि, किंतु एहा द्वारा नास्तिक मानंकु छलना करा जाई अछि। श्री बुद्धदेव भगवानंकर एक अवतार अटंती, तेणु से वास्तव में वैदिक ज्ञानर आदि प्रणेता अटंती। तेणु से कदापि वैदिक दर्शन को प्रत्याख्यान बा अस्वीकार करि परिबे नाही, किंतु से यहाकू बाहर को देखाई पाई अस्वीकार कले, कारण भगवत विद्वेषी सुरद्विष बा दैत्य माने वेदर पृष्ठारु प्रमाण उल्लेख करी गोहत्या बा पशु हत्यार समर्थन करुथिले। वर्तमान सुद्धा यह आधुनिक सन्यासी माने करुछंती। अतएव भगवान बुद्धं को देव प्रमाण को संपूर्ण अस्वीकार करने आवश्यक पड़ता। यह व्यवहारिक अटे। पुनश्च से समय रे जदि से परि न करी थान्ते ताहेले भगवानकर अवतार रूपरे से स्वीकृत होई न थान्ते, किंबा प्रसिद्ध वैष्णवाचार्य कवि जयदेवଙ୍କ गीत रे दशावतार स्त्रोत रे तांकर गुणना करा जाई न थांता। से वेदर प्राधान्य प्रतिष्ठा करिबा पई आवश्यक थिबा प्रारंभिक वैदिक सिद्धांतर प्रचार करिथिले। तेणु उभय भगवान बुद्ध एवं आचार्य शंकर आस्तिकतार आधारिकता स्थापन करिछंती एवं आस्तिकतार मार्ग निर्माण करिछंती एवं वैष्णव आचार्यगण विशेष कर श्री चैतन्य महाप्रभु भगवत धाम को फेरी जीवा निमित्त लोक मानकु मार्ग प्रदर्शन करी जाइछंती। श्री बुद्धदेव अहिंसा आंदोलन रे लोक माने अंशग्रहण करुछंती देखि से आंबे माने खुशी हेउछु, किंतु से माने पशु हत्या आंदोलन को अत्यंत गुरुत्वपूर्ण भावे ग्रहण करी कंसेई खाना को संपूर्ण रूपे बंद करिदेबे कि? ताहा जदि न हुए ताहेले ए प्रकार अहिंसा आंदोलन कोनोसी माने नहीं। कलिजुगर आरंभर ठीक पूर्वरु श्रीमद् भागवतम रचना करा जाइथिला एवं भगवान श्री बुद्ध प्राय 2600 वर्ष पूर्वे आविर्भूत होइथिले। तेणु श्रीमद् भागवतम रे भगवान बुद्धंक आविर्भाव भविष्यवाणी करा जाइछि। ए विशुद्ध शास्त्र यह ही होची प्रामाणिकता। ए शास्त्र रे ए प्रकार अनेक भविष्यवाणी करा जाई अछि एवं से गुड़िक गोटिए परे गोटिए पूर्ण होई चली। एथिरु श्रीमद् भागवत विशुद्धता प्रामाणिक हेउअछि।
बद्ध जीवर जो चारिटी दोष अच्छी यथा इंद्रिय गुड़िक दोषयुक्त माध्यामुदार्थ भ्रमपूर्ण एवं अन्य को ठकिबा चेष्टा करिवार मनोवृत्ति सेतुरु यह मुक्त मुक्तात्मा माने ए दोषरु मुक्त एहार बहुत ऊर्ध्वरे से माने अवस्थित तेणु से माने सुदूर भविष्यतरे कौन घटिब देखी पारंती एवं तदनुयायी भविष्यवाणी देई पारंती। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद ने अगर इतना बड़ा परपुट दिया है तो आप सोचिए वर्ष का कितना इंपॉर्टेंस होगा। हम सोचेंगे बुद्ध देव के बारे में, हम तो कृष्ण भक्त है, राम भक्त है, हमें क्या जरूरत है। लेकिन सोचिए अगर प्रभुपाद ने इतना बड़ा वर्ष लिखा है कुछ तो महत्व होगा। टिकट आउथरे खोल दो 1.3.24 कितने इंपॉर्टेंस थी वो, सेटा हम विषय के डिस्कस करें। एक्चुअली प्रभुपाद सब कुछ लिख लिए हैं, हमें ज्यादा कुछ डिस्कस करना नहीं है, लेकिन उसी को हम थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। एक बार इसका अनुवाद मैं ओडिया में पढ़ूंगा, आप रिपीट करिएगा। तत्परे बोलिए कलिजुगर प्रारंभ रे अज्ञानक पुत्र रूपे भगवान बुद्ध रूपरे प्रभु गया प्रदेश रे आविर्भूत हेबे। भगवत विद्वेषी मानंकु सम्मोहित करिबा हेबो तांकर आविर्भावर उद्देश्य। तो यागुरा में इसके पहले हम डिस्कस किए थे राम और कृष्ण के इनकारनेशन। वो कितना नंबर इनकारनेशन था याद है? 1920 19 और 20 था। ये है 21st इनकारनेशन। ठीक है, वर्ष के बारे में बोलने से पहले आप देखिए इसमें एक लाइन लिखा है लास्ट, किकटेसु भविष्यति। भविष्यति मतलब क्या है? फ्यूचर टेंस। भागवत कब लिखा गया है? हाँ, 5000 साल पहले। बुद्ध देव कब आए थे? 2600 साल पहले। तो जब भागवत लिखा गया था ये क्या फ्यूचर टेंस में था। तो सोचिए इससे हमें क्या समझना है कि कोई भी यहाँ आ गया बोला मैं भगवान हूं, मुझे पूजा करो, हमें मानना है? नहीं, हमें एक ऐसे शास्त्रों पे विश्वास करना है, ऐसे शास्त्र पे पढ़ना है जो शास्त्र भूत भविष्य और वर्तमान जानता हो। जैसे भागवत में ऐसे बहुत सारी चीज लिखे गए जो कि सच हुए हैं, और फ्यूचर में ऐसे ऐसी चीज लिखे गए जो सच होने वाले हैं। तो ऐसी कोई भी आ गया और बोल दिया मैं भगवान, उससे मानना नहीं है। किसमें कितना अच्छा चीज लिखा गया है। हमें अलग से कोई रिसर्च वर्क करना जरूरी नहीं है, हमें नहीं अलग से PhD और MTech करना है, इसमें कोई जरूरी नहीं है। जो शास्त्र बोलता है उससे मानो, काफी है। तो जब कलयुग चालू हुआ था ना, जब परीक्षित महाराज थे कलयुग की जस्ट पहले, तब कली एंटर नहीं कर पा रहा था इस युग में। जब परीक्षित महाराज गए उसके बाद कली का प्रभाव बहुत ज्यादा तेज हो गया, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया। तो देखिए मैं इसको कितना अच्छा से शास्त्र बताया गया। देखिए कब पहले बताया गया कि कलौ संप्रवृत्ते, कब जन्म होंगे, क्या लिखा गया? कलौ संप्रवृत्ते मतलब कलयुग के स्टार्टिंग में। फिर क्या बता रहे? कौन जन्म लेगा? क्या बोल रहे हैं? बुद्धो नामना, मतलब उनका नाम क्या होगा? बुद्ध। फिर क्या बता रहे हैं? अंजना सुतः, अंजना सुत मतलब उनके माँ का नाम क्या होगा? अंजना। फिर परपोज बता रहे हैं, क्या परपोज है? सुरस्विसाम, सुरस्विसा मतलब जो अभक्त होंगे ना उनको भक्ति बनाने के लिए, है ना, उनको डेल्यूट करने के लिए, मतलब उनको झांसा देने के लिए। किनको झांसा देने के लिए? जो अभक्त है। और फिर कहां जन्म लेंगे, क्या बता रहे हैं? किकटेसु, किकटेसु मतलब प्रोविंस ऑफ गया। तो देखिए कितना क्लियर है, कहीं ऐसा नहीं कि कहीं झुला रहे भगवान, भगवान बहुत क्लियर है। सुत गोस्वामी बता रहे हैं। अब हमें समझना है कि पहले हमें समझना पड़ेगा ये परपुट को समझने के लिए कि हम यहाँ आए क्यों, और जब हम आ गए तो हम यहाँ पे अभी भी क्यों रह रहे हैं।
हम क्यों नहीं गए अभी तक? इसको समझने के लिए भगवत गीता का 7 चैप्टर 27 वर्स हम पढ़ेंगे, आप रिपीट करिएगा। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। शॉर्ट में भगवान क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे दो रीजन दिए हैं हम यहाँ पे क्यों आए हैं। क्या रीजन है बोलो तो? इच्छा और द्वेष। इच्छा और, एक बार सब बोलिए, इच्छा द्वेष। इच्छा क्या था हमारा? हम भगवान से दूर रहकर अलग से एंजॉय करें, ये हमारा इच्छा था। द्वेष क्या था? खाली कृष्ण क्यों एंजॉय करें, मैं भी एंजॉय करना जानूं, मैं भी एंजॉय करूं, वो क्यों अलग से बैठे सब उनका सेवा क्यों करे, मेरा भी कोई सेवा करे। भगवत गीता में कृष्ण क्लियर कर दिया कि ये दो कारण के कारण। फिर से बोलिए, पहला क्या है, दूसरा सिंपल है, ये दो कारण के कारण हम यहाँ आए हैं। तो भगवान भी क्लियर कर लेते हैं 4th चैप्टर भगवत गीता का 11th वर्स में, क्या है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्। मतलब जैसे आप सरेंडर करोगे उस हिसाब से मैं आपको रिवॉर्ड दूंगा, आशीर्वाद दूंगा। इसका मतलब क्या है, जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको शरीर मिलेगा। एग्जाम्पल में समझते हैं, आप कोई अगर स्विमिंग पूल जा रहे हैं, सुनाई दे रहा है ना, आई होप, कहीं स्विमिंग पूल जा रहे हैं, अब आप धोती कुर्ता पहन के स्विमिंग पूल जा पाओगे नहीं, उनका एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम है ना। चलो इससे भी और तो अच्छा एग्जाम्पल समझते हैं, आप चंद्रमा प्लैनेट में जाना है, सपोज हमको सपोज फॉर्चून मिला कि मून प्लैनेट में जाना है। अब सोचो मैं धोती कुर्ता तिलक में जाऊं, जा पाऊंगा, रह पाऊंगा वहां पे? नहीं। तो पर्टिकुलर कर्मा के हिसाब से हमको पर्टिकुलर जगह दिया गया है। तो वैसे ही धरती में भी हम बिकॉज द्वेष और ईर्ष्या किए थे, इसलिए हमको इस दुनिया में आना पड़ा। समझ गए हम क्यों रह रहे हैं, अभी भी क्यों यहाँ पे हैं हम? क्योंकि अभी भी हम ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं। हमको लगेगा हाँ मैं क्या, नहीं नहीं मैं तो भगवान का शुद्ध भक्त हूं, इतना अच्छा भक्ति करता हूं मैं, चैंटिंग 16 माला, हर दिन मैं साहित्य पढ़ रहा हूं, हर दिन लेक्चर सुन रहा हूं, संडे प्रोग्राम आता हूं, प्रसाद ग्रहण कर रहा हूं, भगवान में भोग लगाता हूं। नहीं नहीं मैं ऐसे ईर्ष्या नहीं करता, ऐसा नहीं है। ईर्ष्या बहुत टाइप्स के हैं, आपको समझना पड़ेगा पहले। ईर्ष्या किस किस हिसाब से हो सकता है? हम भक्तों से ईर्ष्या कर सकते हैं, भगवान से ईर्ष्या कैसे कर रहे हैं? कब कब मन में आता है, थोड़ा मिरर में देख लूं तो लिपस्टिक लगाऊं, थोड़ा बाल सजाऊं, हम थोड़ा अच्छा शर्ट पहने, नहीं आज मैं ये नहीं पहनूंगा था, रेड कलर का ड्रेस पहनूंगा, नहीं येलो, ये है सबके मन में है। ऐसे बहुत टाइप्स के, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे बहुत प्रवृत्ति हमारा है। ये सब भी एक एंजॉयमेंट मेंटालिटी है जिसके कारण हमें इस दुनिया में अभी तक रहना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? अब सोचो, गवर्नमेंट को क्या इच्छा करता होगा कि प्रिजन हाउस बनाने का, मतलब जेल को उड़िया में क्या बोलते हैं, हिंदी में या तो कारखाना, कारागार, कारागार क्यों बनाए? इतना खर्चा क्या जरूरी है बोलो ना, इतना खर्च करना, उसको रखना, क्यों? कि हम ही लोग को इच्छा था कहीं ना कहीं हम चोरी करें, एक्स्ट्रा पैसा कमाएं, कहीं को किसी को मर्डर करे, ये मेरे पति बहुत द्वेष करते उसको मार दो, कुछ ना कुछ ऐसा इच्छा था, इसलिए गवर्नमेंट ने जेल बनाया और इसलिए हमको जाना पड़ा। नहीं तो भगवान को, नहीं तो गवर्नमेंट को क्या जाता है, क्यों खर्चा एक्स्ट्रा करे, उसमें कोई जरूरत नहीं। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, वैसा हमको शरीर मिलेगा, और तब तक हम रहेंगे जब तक ये हमारा इच्छा और द्वेष हमारे भीतर रहेगा। ठीक है, अब हम जानेंगे कि बुद्ध यहाँ आए क्यों। जैसा बता रहे शास्त्र में, प्रभुपाद जी ने बहुत जगह बताया कि बुद्ध यहाँ आए क्यों। क्या हुआ, जब कलयुग जस्ट चालू हुआ तो जो महान स्मार्ट ब्राह्मण थे, बहुत बड़े बड़े नॉलेजेबल ब्राह्मण, वो लोग क्या किया, उनको बड़ा मांस खाने का इच्छा था। अब देखिए शास्त्र में क्या लिखा गया है कि मांसाहार अलाउड है, उसके बाद भी बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन वो पार्ट को ले लिए, क्या लिए, मांसाहार करना अलाउड है। उन्होंने क्या किया, वो स्क्रिप्चर का वही पार्ट को लेके क्या करने लगे, जीव हत्या। क्या करने लगे, जीव हत्या। इसलिए बुद्ध देव आए कि अभी कलयुग जस्ट स्टार्ट हुआ है,
पूरा चरम में, सब पूरा मतलब 4 डेबिलिटी प्रिंसिपल सबको मालूम होगा, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, ये पर चरम में था उस समय। अब सोचो बुद्धदेव वहां आते और बोलते ये क्या कर रहे हो, सब मीट ईटिंग छोड़ दो, गैम्बलिंग छोड़ दो, इंटॉक्सिकेशन छोड़ दो, 16 माला करो, हाँ पूरा कंठी माला पहनो, जप माला करो, कर पाएंगे वो लोग? कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, छोड़ो तो पागल है। तो भगवान जिनके 6 ऑपुलेंस में एक ऑपुलेंस क्या है? नॉलेजेबल, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो भगवान इतने इंटेलिजेंट है, वो क्या किए? ठीक है, तुम शास्त्रों को यूज करके जीव हत्या कर रहे हो ना, चलो मैं, मतलब भगवान बोल रहे हैं, मैं खुद अवतार लूंगा और तुमको बोलूंगा शास्त्र मत पढ़ो। ठीक है, भगवान ने क्या किया? भगवान ने उन अभक्तों लोग को कैसे समझाऊं, उन अभक्त लोग को डायरेक्ट स्क्रिप्चर पे भक्ति नहीं दिलाया, पर किस पे भक्ति दिलाया? भगवान के अवतार पर। समझो कितनी इंटेलिजेंट है। डायरेक्ट बोलेंगे कि शास्त्र पढ़ो, भागवतम पढ़ो, तो उनको समझ में नहीं आता। उन्होंने क्या किया? एक बुद्ध देव के इनकारनेशन में आए। लोगों को क्या लगेगा? एक नॉर्मल इंसान है, ठीक है, शास्त्र मत पढ़ो, मुझे फॉलो करो। और लोगों को क्या है? मोरल वैल्यूज बहुत पसंद है। अभी भी आजकल भी दुनिया में आप जाओ, कहीं भी बोलो आओ मेरे साथ भगवत गीता प्रचार करने चलो संबलपुर में, हम बुढ़ाजा में करेंगे, बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होंगे। आप जाके बोलो चलो आज मोटिवेशन स्पीकर देंगे, मोटिवेशन क्लासेस करेंगे, आज हम करेंगे कैसे हम आईआईटी क्रैक करेंगे, कैसे हम मेडिकल क्रैक करेंगे, देखो लोगों का संख्या कितना बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं? कौन राजी है? अभी बोलो ना, कौन कौन गीता दे रही है ना, आप लोग तो सब भक्त हो, बाहर दुनिया में बोलो कोई नहीं आएगा। तो ये उस समय भी था, मोरल वैल्यूज का इंपॉर्टेंस उस समय भी था। भगवान इतने इंटेलिजेंट थे, चलो उसी को मैं मेन रखता हूं। और उन्होंने कौन सा मोरल वैल्यू को पकड़ा? जीव हत्या नहीं करने का। समझ में आया? आई होप मैं समझा पा रहा हूं। तो जीव हत्या को उन्होंने इंपॉर्टेंस रखा कि बाकी सब भूल जाओ, शास्त्र को भूल जाओ, जीव हत्या नहीं करो, ये प्राथमिकता रखो। ठीक है, अब ये शास्त्र का मिसयूज हुआ क्यों? जो मैं बोला कि ब्राह्मण ने शास्त्र का मिसयूज किया, उन्होंने किया क्यों? प्रभुपाद ने बहुत सुंदर बताया, मैं इसको फिर से पढ़ूंगा, सुनिए। मैं हिंदी में पढ़ूं क्या? तो इजी रहेगा, उड़िया वो स्लो हो जा रहा है मेरे लिए। मैं हिंदी में पढ़ता हूं, आप सब समझ पाएंगे। प्रभुपाद का ही परपोर्ट हिंदी में है। भगवान बुद्ध के आने से पहले समाज में जानवरों की बलि देना एक आम बात थी। लोग दावा करते थे, ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर क्वेश्चन पूछूंगा कि क्यों स्क्रिप्चर्स का मिसयूज हुआ। लोग दावा करते थे कि ये वैदिक यज्ञ है। जब वेदों को गुरु शिष्य परंपरा के सही और आधिकारिक ज्ञान के जरिए नहीं समझा जाता, तो वेदों को सतही तौर पर पढ़ने वाले लोग उस ज्ञान प्रणाली की आकर्षक भाषा से गुमराह हो जाते हैं। भगवत गीता में ऐसे मूर्ख विद्वानों के बारे में बताया गया है। वैदिक साहित्य के वे मूर्ख विद्वान जो गुरु शिष्य परंपरा के आध्यात्मिक और ज्ञानी स्तोत्रों से दिव्य संदेश पाने की कोशिश नहीं करते, वे निश्चित रूप से भ्रमित हो जाते हैं। अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जो बताएगा हाथ उठाना है। कैसे स्क्रिप्चर्स का मिसयूज हुआ? परफेक्ट। और कोई माताओं में कोई बोलना चाहेगा? प्रभु जी जो बोले, कोई माता में कोई बोलना चाहेगा प्रभु जी ने क्या बोला या प्रभुपाद ने क्या बोला? जो गुरु शिष्य परंपरा को नहीं मानते हैं वो लोग स्क्रिप्चर का मिसयूज करेंगे। कांग्रेचुलेशंस, आप लोग गुरु शिष्य परंपरा में हो, जिसको लीड कर रहे श्री प्रभुपाद और श्रीपाद महाराज। ये गुरु शिष्य परंपरा में हमको सिर्फ रहना है, कुछ करना नहीं है। सिर्फ रहिए, ऑटोमेटिक सब ज्ञान मिलेगा। हमारा क्या काम है? इस परंपरा में रहने का। अगर रहेंगे तो हम स्क्रिप्चर का कोई मिसयूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो बुद्धदेव जो आए थे उनका मेन फिलोसॉफी था कि ये जो बॉडीली पेन्स है ना, इतने कष्ट है हमको जो मिल रहे हैं ना, वो क्यों है? ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर, हिंदी में क्या बोलेंगे मैटर को?
समझ में आ रहा होगा ना। पृथ्वी, जल, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब जो है ना 8 तो इस, हाँ, पंच महाभूत और 3 इंद्रियां, ऐसी कुछ है ना। हाँ हाँ ठीक है, जो भी हो। तो उन्होंने क्या कहा फिलोसॉफी की, जो कष्ट हम पा रहे ना ये 8 के लिए है, तो हमें क्या करना है, ये 8 को ही उससे दूर रहना है। एग्जाम्पल में समझते हैं हम लोग। सपोज ये घर, ये मंदिर को नहीं बोलूंगा, एक घर है, किससे बना है, ईटा सीमेंट से बना है। अगर हम वो ईटा सीमेंट को तोड़ दे तो वो घर रहेगा, नहीं रहेगा। बुद्ध देव यही किए, क्या किए, अब हम अगर ये जो अर्थ, वाटर, एयर है, मन, बुद्धि, अहंकार है, ये जो पंचभूत है, इसी से हमको दूर हो जाए तो हमारी अटैचमेंट जो शरीर पे है वो शरीर पे नहीं रहेगा। सिंपल है, आई होप आप समझ पा रहे हो। तो अभी क्या हुआ, इससे हम क्या समझ रहे हैं कि जब जब बुक भागवत, बुक मतलब किताब भागवत, जब भी हम इसका ग्रहण नहीं करेंगे तब कौन आएगा, पर्सन भागवत, मनुष्य भागवत नहीं, मनुष्य भागवत तो नहीं बोला जाएगा, जो भी हो, व्यक्ति भागवत। जब भी ग्रंथ भागवत हम को उसको ग्रहण नहीं करेंगे तो कौन आएगा, व्यक्ति भागवत। इस केस में कौन है, बुद्ध देव, ठीक है ना। अब हम कुछ गौतम बुद्ध का कुछ मैं पास्ट टाइम्स लीला बताऊंगा, उससे हम अपने वैष्णव में कैसे इसको ग्रहण कर सकते हैं उसको मैं रिलेट करूंगा, तो आपको समझ में आएगा कौन थे बुद्ध देव। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, जब गौतम बुद्ध आए थे, जो जन्म लिए थे, तो उनके सपने में, उनके माँ के सपने में एक व्हाइट एलिफेंट आया था और उनके वूम में चला गया था, और नेक्स्ट डे लॉर्ड बुद्ध जन्म हुए थे। और एस्ट्रोलॉजी में क्या बताया गया था, ये सब जानते होंगे, सिद्धार्थ, आपने सब पढ़ा है। क्या बताया गया था स्टोरी में, उनके एस्ट्रोलॉजी में क्या बताया गया था मालूम है, अगर वो महल के भीतर रहेंगे तो एक बहुत बड़ा राजा बनेंगे, लेकिन अगर वो महल के बाहर निकल गए तो एक बहुत बड़े महात्मा बनेंगे। ये सब जानते हैं। सिद्धार्थ का स्टोरी किस किस को मालूम है यहाँ पे, सबने छोटे के बचपन में पढ़े होंगे सिद्धार्थ स्टोरी। इसको मैं थोड़ा ब्रीफली बोल दूंगा ताकि रिलेशन में आ जाए। तो बुद्धदेव का नाम था सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ को जैसे एस्ट्रोलॉजी बताया गया कि अगर वो महल के बाहर जाएंगे तो वो महात्मा बन जाएंगे, संत बन जाएंगे। तो क्या हुआ था, उनको, उनके जो पिताजी थे उनको सब धन समृद्धि दे दिए, एक भी बूढ़ा अलाउड नहीं था भीतर, कोई भिखारी अलाउड नहीं था भीतर, सब सुंदर सुंदर व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, धन धान्य, सुख समृद्धि सब था वहां पे। तो ऐसे ही चल रहा था, सिद्धार्थ आराम से खुशी रहे, शादी वादी हो गया। एक टाइम का बात है, उनको एक, उनका जो बहुत बड़ा पैलेस था, एक पैलेस से और एक पैलेस में जाना था, उसके बीच में एक पेड़ गिर गया। जब पेड़ गिर गया तो उनके जो सारथी थे, सारथी का नाम था चन्ना। वो सारथी को बोला, अरे रास्ता तो बंद है, चलो घूम के जाएंगे। पर चन्ना को क्लियरली बोला गया था कि उनको वो जंगल के रास्ते से लेना नहीं है, महल के बाहर लेना ही नहीं है। अब सिद्धार्थ बोले, अब कैसे जाएंगे, हमें जाना ही है। और जब सिद्धार्थ का ऑर्डर है तो क्या करे, तो फिर चन्ना ने उनको जंगल के भीतर से घुमा के ले गया। तो जब जा रहे थे तब पहले किस आदमी को देखे, जिसको कोढ़ हुआ था। कोढ़ मतलब मालूम है ना, बीमारी है, डिजीज है, ऐसे हुआ था। सिद्धार्थ ने इससे पहले कभी भी कोई कोढ़ मानुष या डिजीज पर्सन को देखा नहीं था। उनको बोला, अरे ये क्या है? तो चन्ना ने क्या कहा, ये एक डिजीज है, इसको कोढ़ हुआ है, इसको बीमारी है। बीमारी क्या होता है? उनको फिर बताया कि बीमारी सबको हो सकता है, आपको भी हो सकता है। वो डर गए, वो देख के डर गए, तो शरीर में इतने सारे घाव थे, डर गए। फिर आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो देखिए एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसका रिंकल हो गया है, चेहरा बाल झड़ गया है, बहुत एजेड, कमर झांसा हुआ है और चल नहीं पा रहे हैं। बोले, ये क्या है? चन्ना ने कहा, ये बुढ़ापा है। बुढ़ापा मुझे भी आएगा क्या ऐसा? हाँ, आपको क्या, सबको आएगा, मुझे भी आएगा, सबको आएगा। और डर गए सिद्धार्थ ने। फिर आगे जब बढ़े तब उन्होंने देखा एक मृत शरीर पड़ा है और उसको लेके जा रहे हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोले के ले जा रहे हैं। और उसके नाक में रुई है, कॉटन। बोले, उसके नाक में ऐसा क्यों रखा गया है, कॉटन? बोले, वो तो मर गया है, वो मृत पुरुष है। मृत पुरुष, ये क्या होता है?
ये सबको होता है, एक टाइम आता है जब जन्म मृत्यु ये सब होगा, ये नहीं भी होगा अगर मृत्यु तो आना ही है। तब सिद्धार्थ महाराज डर गए, बोले अरे मुझे भी होगा क्या? चन्ना ने कहा हाँ आपको भी होगा। पूरा डर गए और आगे बढ़े। जब और आगे बढ़े तो एक भिखारी दिखा, एक भिक्षुक, बहुत गरीब भिक्षुक आदमी था वो एक हाथ में एक कटोरा पकड़ा था और एक हाथ में जपमाला पकड़ा था और भगवान का नाम ले रहा था। बहुत भिक्षुक, टॉर्न क्लॉथ्स, कपड़े फटे हुए, बहुत गरीब, खाना पीना नहीं पता चला, बस सुपड़े हुए थे। सिद्धार्थ ने कहा अरे ये क्या है, ये इतना गरीब ऐसा कैसा आदमी है, ये कपड़ा फटा हुआ है, पतला दुबला, तो ये एक भिक्षुक आदमी है, इसका कुछ पैसा वैसा है नहीं। फिर सिद्धार्थ ने पूछा इतना भिक्षुक है, इतना गरीब है, तो वो इतना खुश कैसे दिख रहा है? तब सिद्धार्थ ने कहा क्योंकि ये भगवान का नाम ले रहा है। ये उनके मन में रह गया और फिर वो महल चले गए। जब महल गए उनके दिमाग में तब से कंटिन्यूसली 4 केसेस उनके मन में आते रहा और सबसे प्रोमिनेंट क्या आ रहा था कि वो भिक्षुक जो इतना गरीब है, इतना पतला है, कष्ट पा रहा है, लेकिन बड़ा खुश था सिर्फ ये भगवान के नाम से। कुछ तो बात है। तो उन्होंने क्या किया, 29 साल में निर्वाण प्राप्त किया। निर्वाण मतलब वो सब कुछ छोड़ दिए और 6 साल गहर तपस्या की, बहुत रिगरस तपस्या की। इतने तपस्या की थे पूरा पतले दुबले पतले हो गए थे, पूरा स्किन नहीं दिखता था, ओनली हड्डी दिखते थे, इतने कमजोर पड़ गए थे। 6 साल उन्होंने इतना किया, बट 6 साल के बाद भी ना उनको वो मजा जो बोलते ना, वो जो उनको पाना था, वो खुशी उनको नहीं मिल पाई। तो उन्होंने कहा मैंने सबसे अमीरी देखा, सबसे खुशहाली जीवन देखा, मुझे उसमें खुशी नहीं मिली। दूसरा मैंने देखा बहुत गरीबी, बहुत तपस्या, फिर भी मुझे खुशी नहीं मिली। अब मुझे क्या करना है? तो उन्होंने एक मध्यम स्तर को एक्सेप्ट किया। क्या एक्सेप्ट किया? उन्होंने सोचा ठीक है, हम जितना रिक्वायरमेंट उतना लेंगे और एक चीज को ज्यादा ध्यान दूंगा मैं, वो है अहिंसो परमो धर्म। उसके बाद से ये बुद्धदेव का प्रचार चलने लगा। आई होप सबको समझ में आया। ठीक, अब कुछ उनका स्टोरीज पढ़ेंगे। जैसे अंगुलीमाल, सब जानते होंगे। मैं इसलिए पहले ये स्टोरी आपको बोलना चाहा कि अंगुलीमाल का स्टोरी मैं बोलूंगा नहीं, सबको मालूम है। ब्रीफ में क्या है, सबने पढ़ा होगा स्कूल टाइम में। अंगुलीमाल जिसको भी मर्डर करता था उसका एक उंगली काट देता था और माला पहनता था। ऐसे उन्होंने 999 लोगों को मर्डर किया था और उनका उंगली को माला में रखा था। अब कितना नंबर बारी है? 1000। अब बोले 1000 तो कुछ स्पेशल होना चाहिए। क्या होगा? कुछ स्पेशल लोग को मारेंगे। तब उनको दिखा महात्मा बुद्ध, वो गए महात्मा बुद्ध को मारने के लिए। अब वो क्या महात्मा बुद्ध को मारेंगे? महात्मा बुद्ध ने ही उनको मार दिया। मार दिया मतलब हत्या नहीं किया, उनके जितने मन में मैल थे, इतने अवगुण थे ना, सबको मार दिया और उनको उनका भक्त बना दिया, उनका अनुयायी बना दिया। और अंगुलीमाल उसके बाद से बुद्धिस्ट फिलोसॉफी को फॉलो करने लगे। अब नेक्स्ट स्टोरी, अब से मैं जो स्टोरी बोलूंगा उसका मैं कुछ रिलेशन में कोशिश करूंगा आपको हमारे वैष्णव आचार्य में हमें कैसे आचरण करना चाहिए उसमें। एक स्टोरी है वही बुद्ध स्टोरी में, जब महात्मा बुद्ध थे तब एक राजा का एक हाथी एक दलदल में फंस गया। जब वो दलदल में फंस गया तो वो राजा गए बुद्ध देव के पास, बोले अरे ये हाथी निकल नहीं रहा है, बहुत कोशिश किए, बहुत सेना है, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे, हम क्या करें? तो बुद्ध देव ने क्या कहा मालूम है? नगाड़े बजाओ, नगाड़े बजाओ, निकल जाएगा। सच का नगाड़े बजाने लगे, वो निकल गया। सब शौक, अरे ऐसी इतने हजार सेना लोग गए, ऐसे खींचने लगे, कोई निकला नहीं है, नगाड़े खाली बजा। नगाड़े में समझ में आया ना, ढोलक वोलक सब इंस्ट्रूमेंट्स। वो निकल गया कैसे? तब गौतम बुद्ध ने एक अच्छा थ्योरी बताया। उन्होंने क्या कहा कि बाहरी माहौल एक जीव को अंतर माहौल को अफेक्ट कर सकता है। फिर से बोलना चाहूंगा, एक जीव को बाहरी माहौल अंतर माहौल को अफेक्ट कर सकता है। मैं समझा नहीं पा रहा हूं, कोई समझा पाएगा अच्छा से? कोई उठा के बोलिए प्लीज। या तो कुछ समझ में नहीं आया, या तो कुछ समझ में आ गया। कुछ नहीं समझ में आया, समझ में आया। एक बाहरी माहौल हमें अंतर से बहुत अफेक्ट कर सकता
है। ये स्टोरी से बुद्धदेव समझाए। इसको हम और थोड़ा रिलेशन में कैसे समझे हमारे जनरल लाइफ में। हम जब चैंटिंग करते हैं, सपोज चैंटिंग कर रहे हैं ऑफिस में, यहाँ पे हमारे सब जो भी है ना हमारे साथ काम कर रहे वो लोग हैं, वो अपना बाह्य बात कर रहे हैं। अरे यार तो वो सास भी वो बहू के साथ झगड़ा हो गया, अरे मत पूछो कैसा झगड़ा। वो आया वहां पे बोले अरे पता है वो सुसाइड कर दिया वो वहां पे, हाँ दरवाजा के। ऐसा बात जब करोगे आपका चैंटिंग होगा? कैसे चैंटिंग होगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही होगा ना? होगा कि नहीं? कौन मानता है? नहीं मानता तो एक्सपीरियंस कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने जॉब प्लेस स्कूल प्लेस में जाइए, जब करके देखिए। ये सबको होना है। क्यों इफेक्ट कर रहा है? क्योंकि वो भक्त नहीं है। इस केस में हम क्या कर सकते हैं? अगर सपोज मंदिर में आके चैंटिंग किए, सब चैंटिंग करें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक साथ बोलेंगे, एक साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार भी किसी को मन में आया कि मेरे घर में मैंने ताला बंद नहीं किया है, अरे मैंने दूध को उबाला था और बंद करने भूल गया, ऐसा लगा? कहीं नहीं आया। क्यों? एक साथ सब भक्त जप कर रहे हैं। ये है बाहरी का इफेक्ट। ये चीज बुद्ध देव इस स्टोरी से समझाना चाहेंगे। समझ गए? अगला स्टोरी। एक माता थे जो बुद्ध देव का बहुत सेवा करते थे। इतना सेवा कि बुद्ध देव बहुत प्रसन्न थे। उनके घर गए, उनके घर में बैठे, लेकिन उनका जो हस्बैंड थे ना, जो पति देव, वो ये पसंद नहीं करते थे बुद्ध देव को। वो खाली गाली गलौज करते थे। आ गया फिर से खाने के लिए, फिर आ गए, निकलो, और बहुत उल्टा पुल्टा गाली करते थे। बुद्ध देव कभी कोई रिप्लाई नहीं करते थे। बुद्ध देव बैठे प्रसाद लेने, ग्रहण करने। माता ने परोसा, फिर से वो पति देव ने कहा, फिर खाने आ गए, खाओ खाओ खाओ, ऐसा करने लगे। फिर क्या किया मालूम है? वो पतिदेव ने बुद्ध देव के ऊपर थूक दिया, मुंह में थूक दिया। अगर सपोज हम पे कोई थूके तो क्या करेंगे? मैं जा रहा हूं, मैं और यहां नहीं रहूंगा, यही ना करोगे। लेकिन बुद्ध देव ने क्या किया मालूम है? हरे कृष्णा नहीं ऑफिस करके निकल के कुछ नहीं रिप्लाई किए। पतिदेव भी शॉक, उनके डिसाइपल्स भी शॉक, क्या हो गया ये? बुद्ध देव ने कोई रिप्लाई कैसे नहीं किया? और गुस्सा आ गया था डिसाइपल्स को। बुद्ध देव ने बोला चलो चलो, गुस्सा नहीं करना। क्यों? तो बुद्ध देव ने उसमें उनको शिक्षा दिया। एक तो क्या शिक्षा दिया मालूम है? कुछ बोलेंगे आप लोग? क्या शिक्षा वो दीजिए, बोलिए ना प्लीज। हाँ हाँ, जरूरी नहीं है कि इस दुनिया में जो भी हमको बोले उसको हमको रिप्लाई देना है। इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ, कुछ समझ में आएगा शायद। हर चीज का रिप्लाई देना जरूरी नहीं है, और नहीं देना है कब कब अच्छा है। आप सोचो अगर कोई आपको बहुत गुस्सा में बोलता है, बहुत गुस्सा में, घर में ही हो, सबके घर में होता है, मैं स्पेसिफिक नहीं, हस्बैंड वाइफ में हो सकता है, दोस्त दोस्त में हो सकता है, जॉब में बॉस और अपने बॉस के साथ हो सकता है, कि कुछ बोल दिया गुस्सा में, आपको ईगो में लग गया, तुरंत आपने उसको रिप्लाई दे दिया। सबके साथ हुआ होगा लाइफ में। बाद में घर जाके लगा काश मैं नहीं बोला होता। हस्बैंड वाइफ में भी होता है, हस्बैंड ने वाइफ, मेरे साथ भी हुआ, ऐसा नहीं, देयर इज नो एक्सेप्शन, राइट? बोल दिया वाइफ को कुछ उल्टा पुल्टा गुस्सा में, बाद में बहुत खराब लगा, अरे मैंने क्यों कहा, वो तो मेरे भलाई के लिए कर रहे थे। सबके लाइफ में ऐसा होता है। तो उस पल अगर रिप्लाई नहीं देते तो मन में कितना जो शांति लगता है वो आप सोच सकते हैं। इसका एग्जाम्पल में सोचो, एक लेटर आप सपोज ये बुल्ला से झारसुगुड़ा भेज रहे हो, अगर झारसुगुड़ा में वो लेटर को कोई रिसीव नहीं किया तो वो लेटर क्या होगा? अभी एनवेलप देखो तो नीचे लिखा होता है इफ अनडिलीवर्ड रिटर्न टू द एड्रेस, वो बैक आ जाएगा। आएगा कि नहीं? एक लेटर अगर हम भेजे और वो रिसीव नहीं किया गया, वो लेटर रिटर्न आ जाएगा। सिमिलरली बुद्ध देव ने कहा कि वो मुझे गाली दिया, मैंने तो एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो गाली गया कहां? रिटर्न्स बैक। समझ गए? आप खुद सोचो ना, सपोज सूर्य देव है ऊपर, ऊपर ही ना है, आप थूको, कितना दूर थूको, जाएगा? सूर्य देव को टच करेगा? क्या होगा? तो उलट के आपके पास आएगा तो किसी व्यक्ति के पास गिरेगा।
सूर्यदेव पे गिरेगा नहीं, हमें भी सूर्यदेव के जैसा रहना चाहिए। समझ में आया? बुद्धदेव ये स्टोरी से ये समझा। हमें कैसे समझना है इसमें? जब हम नए नए भक्ति में आते हैं ना, कोई अगर बोल दिया नहीं 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 सीनियर भक्त में भी ऐसे होता है, हम आ गए और मैं कोई बोल रहा है अरे हमको कोई इनविटेशन नहीं दिया, रामनवमी है मुझे इनविटेशन नहीं दिया। ठीक है संडे का से बोले थे कि आप सब आओ, लेकिन मुझे अलग से बोलना चाहिए ना, मैं 16 माला करता हूं, मुझे नहीं बोलोगे? और उसके लिए आपको लग गया रामनवमी अटेंड नहीं करोगे, फेस्टिवल अटेंड नहीं करोगे, मंदिर प्रोग्राम बंद कर दोगे। अरे मुझे उन्होंने राइस कम दिया संडे प्रोग्राम में, मैं इतने सालों से भक्ति का दीक्षित भक्त हूं, मुझे कैसे राइस कम दे सकते हैं ये? मैं ये मंदिर नहीं आने वाला, ये बुल्ला मंदिर बेकार है। सबके साथ ऐसे हो सकता है, इवन मेरे साथ होता ही है। ऐसे भक्ति में ऐसे कभी भी आ सकता है। हमें उसमें अपने आप को समझना चाहिए कि या तो कुछ परिस्थिति वैसा है या तो मेरे कर्म वैसे हैं जिसके कारण मुझे ऐसा सहना पड़ा। ध्यान रखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। और एक चीज समझना पड़ेगा, अगर आपका साधना उतना अच्छा नहीं रहा तो ये छोटे मोटे गालियां आपको जल्दी इफेक्ट करेंगे। अगर आपका साधना अच्छा रहा, साधना मतलब रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग, भक्तों का संग, कुछ सेवा करना, ये सब अगर आप करते रहोगे ना, ये बाह्य चीज कोई भी कुछ बोल दिया वो आपका इफेक्ट कभी नहीं करेगा। विश्वास रखिए या तो एक्सपीरियंस करिए, दो ही चीज है हमारे पास। तो हम ये जो है भक्ति में ये जो हम बता रहे हैं कि इफेक्ट कर रहा है, इसे हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हमें इफेक्ट नहीं करेगा, इसके लिए मैं एक तो वैष्णव सॉन्ग गाऊंगा, है ना, तो अच्छा लगेगा थोड़ा आप लोग। हो सकता है इसको नींद आ रहा हो तो नींद भी टूट जाएगा। वैष्णव सॉन्ग है, सब जानते हैं, ओहे वैष्णव ठाकुर दयारो सागर। मोबाइल में खोल सकते हैं इसको या तो गूगल में मारिए ओहे वैष्णव ठाकुर दयारो सागर, और कोशिश करिएगा रिपीट करने का। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासे करुणा कोरी। ओहे दिया पद छाया शोधोए आमाया, दिया दिया पद छाया शोधोए आमाया, दिया তোমার চরণ ধরি, তোমার চরণ ধরি, তোমার চরণ ধরি। ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর, এ দাসে করুণা করি। ওহে ছয় বেঘ তুমি ছয় দোষা শোধি, ছয় বেঘ ছয় গুণ দেহ দাসে, ছয় সত সঙ্গ দেহ আমারে, ছয় শত সঙ্গ দেহ আমারে, বসেছি সঙ্গের হাতে, ও বসেছি সঙ্গের হাতে। একাকে আমার নাহি পায় বল, হরি নাম সংকীর্তনে।
তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া, তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া, দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে, দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে। कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण देते पारो, তোমার শক্তি আছে, আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, দাই তব পাছে পাছে, দাই তব পাছে পাছে। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, दासे करुणा करी, ओ हे हरे कृष्ण। समझ में आया? ये लिखे हैं भक्ति विनोद ठाकुर ने, सब जानते होंगे भक्ति विनोद ठाकुर कौन है, एक्सप्लेन नहीं करेंगे। क्या समझ में आया मैंने क्या कहा था? हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं जो हमें, क्या खुद के बल से कर सकते हैं? नहीं। तो इसमें वैष्णव सॉन्ग में क्या बताया गया, किसके बल से कर पाएंगे? वैष्णव ठाकुर, कोई शुद्ध भक्त, कोई भी शुद्ध भक्त का अगर हम शरण लेंगे तभी हम क्या हो पाएंगे, ये अवगुण से हम दूर हो पाएंगे। शुद्ध भक्त कौन है? श्रीपाद महाराज, प्रभुपाद, हिज ग्रेस अमेय प्रभु, ऐसे बहुत सारे डिवोटी, संदीपनी बहुत सारे डिवोटी है, नाम नहीं ले सकते, यहाँ बहुत सारे शुद्ध भक्त खड़े बैठे हैं, उनका शरण लेना है। ठीक है। तीसरा स्टोरी बोलेंगे। एक बार बुद्धदेव गए थे प्रोस्टिट्यूट के घर में, प्रोस्टिट्यूट मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, वैश्या, वैश्या के वहां पे। अरे आप लोग भी शौक हो गए हो ना, कैसे? उनके डिसाइपल्स भी शौक हो गए थे, शिष्य लोग भी। अरे बुद्धदेव जो भगवान के अवतार हैं वो वैश्या के वहां गए। सब डिसाइपल्स, सब शिष्य लोग शौक, गए रात में, रात भर नहीं आए। नेक्स्ट डे सुबह बुद्धदेव बाहर निकले, शिष्य शौक, क्या देख रहे हैं, जो वैश्या थी वो आ रही है, जो बुद्धदेव, बुद्धिस्ट लोग का जो ड्रेस रहता है ना, सैफ्रॉन टाइप का रहता है, सैफ्रॉन नहीं रहता एग्जैक्टली, और क्रिम्सन रेड कलर रहता है, वो रेड कलर ड्रेस पहनी है, शेव्ड हेड। ये है पावर। क्या समझ सकते हैं इससे हम लोग? बुद्धदेव ने बहुत अच्छा लाइन कहा, उसको मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो अच्छा लगेगा, पावरफुल है। बुद्धदेव ने कहा कि माई रियलाइजेशन इज मोर पावरफुल देन हर कंटामिनेशन। कितना अच्छा लाइन है, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये, ऑब्वियस। माई रियलाइजेशन मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, मेरा अनुभूति, अनुभूति, आध्यात्मिक अनुभूति, ठीक है। मेरा जो आध्यात्मिक अनुभूति है वो क्या है, वो वैश्या के जो अपवित्रता है उससे भी ज्यादा बड़ा है, और इसीलिए मैं अफेक्टेड नहीं हुआ। समझ में आया? इससे हम क्या समझ सकते हैं? हम ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि हम कब कब प्रचार करने जाते हैं, भगवान का नाम प्रचार करने जाते हैं। इस कॉल में बहुत बार बोला गया होगा, प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रेस किए, प्रीचिंग इज द एसेंस। प्रचार जब हम करने जाएंगे उस समय अगर खुद का भक्ति बहुत वीक होगा तो क्या होगा, कोई कुछ बोल देगा आपको कि अरे इसमें कैसे, ये शास्त्र में तो ये लिखा है,
तब आप उसका खंडन नहीं कर पाओगे और आप क्या होगे, हाँ हाँ यही ठीक है, मैं और संडे नहीं जाऊंगा, मैं इस्कॉन और नहीं जाऊंगा। यही होना है, विश्वास करिए, एल्स एक्सपीरियंस इट। इसीलिए हमें साधना करना जरूरी है। समझिए आप लोग एक चीज, खुद का प्रयास ठीक है, भगवान का आशीर्वाद भी जरूरी है। इसका मतलब ये है कि आपको अपना साधना जरूर करना है। जरूरी नहीं है कि आप पूरा बहुत बड़े इंटेलिजेंट पूरा साइंटिस्ट बन जाओगे, जरूरी नहीं है। अगर आप कोशिश करोगे तो राइट टाइम में राइट आंसर्स भगवान आपको देंगे, या आपके वाणी से या किसी के वाणी से, लेकिन आपको कभी भी बेइज्जती भगवान नहीं करेंगे। भगवान वैसे नहीं है, भगवान बहुत कोमल हृदय के हैं। अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, इसका मतलब हमारे कर्म हैं जिसके कारण हमको ये सुनना पड़ा। ये हम सबको समझना पड़ेगा। इस स्टोरी से हम यही समझे, साधना स्ट्रांग रखेंगे तो हम भक्ति में बचे रहेंगे, एल्स टाए टाए फिस। जैसे कबड्डी, कबड्डी कौन कौन खेला है, हाथ उठाइए। करते ना कबड्डी 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 कबड्डी, करते हैं ना। कबड्डी में तब तक ही घुसना है जब तक आप बाहर निकल पाओगे। आप बोलेगा हाँ हम तो तान सिंह है ना, जो भी है, हाँ हम घुसेंगे पूरे एंड लाइन तक, और वहां पे 10 लोग कूदे, निकल पाओगे? जरूरी नहीं है, उतने बलशाली होगे तब ना। जितना बल है उतना ही घुसो कबड्डी में, सिंपल। अगर आपको बहुत मालूम है कि हम वो 2-3 लोग को ही पकड़ेंगे और लेके आ सकते हैं, उतना में ही घुसिए ना। क्यों बहादुरी मानना है इतना? सिंपल है, ये वैष्णव फिलोसॉफी भी इतना ही है। जितना है उतना में आप जितना हो सके करिए। आप बोलोगे मैं 25 माला करूंगा, 32 माला करूंगा, कोई सेवा नहीं। 32 माला 64 माला, कुछ दिन के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, नहीं कर पाओगे। 2 महीना 1 महीना चल भी गया ना, उसके बाद नहीं अच्छा लग रहा है, घर में इतना काम है, रात का 11:30 हो गया है, और भी मैं 64 माला के और भी 10 माला बचा है, मैं परेशान हो गया हूं। यही होगा, धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और वो 64 क्या 6 क्या वो शून्य में आ जाएगा। ठीक है ना? इससे हम यही समझ सके, साधना स्ट्रॉन्ग करो। अगला एक स्टोरी ले, कौन कौन चाहेगा हम और एक स्टोरी बताए, नहीं तो एंड कर लेंगे, 9:15 हो गया। ठीक है, वैसे मैं बोलने ही वाला था, मतलब ऐसा नहीं। चलिए, आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। प्लीज अपराध मत लीजिए। मैं ये इनकारनेशन प्रभुपाद ने इतना बड़ा परपोर्ट दिया, उसका इंपॉर्टेंस इतना है। अमेय प्रभु ने भी लास्ट क्लास में इसीलिए कहा कि ये परपोर्ट को हम अच्छा से डिस्क्राइब करेंगे। मैं इसीलिए इन स्टोरीज से आपको समझाना चाहता हूँ कि बुद्ध देव का इंपॉर्टेंस और हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं कि हाँ ये निर्विशेषवाद है, शून्यवाद लोग हैं तो हम नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है। रेस्पेक्ट रहना जरूरी है। ठीक है, एक बार एक राजकुमार थे, वो बुद्ध देव के पास गए। उन्होंने बुद्धदेव को कहा, महात्मा बुद्ध, मैं पिताजी की कमाई से परेशान हो गया हूं, बहुत कमाया, मैं परेशान, मैं चाहता हूं इंडिपेंडेंट बनूं, खुद से कुछ करूं। तो ठीक है, करो। राजकुमार ने कहा, अगर मेरा कैपेसिटी से मैं अगर डबल काम करूं तो मैं कितने साल में खुशी पा पाऊंगा? 10 साल। बुद्ध ने कहा 10 साल में आप खुशी पा जाओगे। ओ, अगर मैं अपने कैपेसिटी से 3 गुना काम करूं तो 20 साल बढ़ गया। अगर मैं 4 गुना काम करूं तो 30 साल। बुद्धदेव ने कहा, शॉक्ड। राजकुमार ने कहा, अरे मैं अपना प्रयत्न बढ़ा रहा हूं बार बार, बट खुशी आप और भी लंबा होते जा रहा है, ऐसा क्यों? बुद्ध ने कहा कि ये कोई भी कार्य जो करना है ना, वो खाली बाहर का साफ सुथराई से होने वाला है नहीं, आपके अंतर मन को भी साफ करना जरूरी नहीं है। समझ में आया कुछ? बाहर का सफाई इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, यस, बट अगर अंतर मन ही दूषित हो तो बाहर का सफाई कोई काम का नहीं आने वाला। ये चीज उन्होंने बताया
कि हम जितना भी शरीर के लिए प्रयत्न करें 10 गुना 20 गुना, उससे क्या खुशी मिलेगी? चंद सेकेंड्स के लिए, चंद सम ईयर्स के लिए मिल सकता है, बट फाइनली क्या होने वाला है? डेथ आने ना वाला है। डिजीज, बुखार बुखार तो आएगा, सर्दी खांसी तो आएगा ना, अवॉइड नहीं, मुझे कुछ नहीं होता, ऐसा हो नहीं सकता। कष्ट मिलना है और सबको मृत्यु आना ही है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की तरफ से बतख, बतख जानते हो ना? आज जब बतख को पानी में देखोगे क्या दिखेगा? पानी में जा रहा है शांत, कुछ दिखता नहीं अगर देखोगे ध्यान से, सिर्फ ऐसे से जा रहा है पानी में स्ट्रेट। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे उसका पैर को, तो पैर क्या चलता है? होता है कि नहीं? क्या समझ में आया इससे? बोलिए। सेम चीज जो मैंने कहा, क्या कहा? सिर्फ बाहर का चीज से मत देखो, अंदर कैसा है, अंदर क्या है समझना पड़ेगा। रिसेंट केस एक हुआ ना वृंदावन में, लोग बड़ा इन्फ्लुएंस हुए उससे, बोले अरे क्या अच्छा भक्त है, बोलते थे, सुनने जो मिला कि मैं कृष्ण हूं, मेरे सपने में राधा रानी आते हैं, ऐसे बहुत कुछ बताया गया। मैं इसमें प्लीज डिस्कस नहीं करना चाहूंगा और डिटेल्स। लोगों ने विश्वास कर लिया। फाइनली क्या हुआ? सब मारिजुआना एंड उल्टा पुल्टा ड्रग्स में इफेक्टेड हुए, फ्रस्ट्रेट हुए, मर गए, बहुत जन सुसाइड किया, बहुत कुछ हुआ ऐसे में। अभी वो जेल में है। तो आईआईटी एनआईटी ऐसे कुछ बड़े बड़े मेडिकल्स कर लिया, अगर जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट हो। ये बाहरी नॉलेज है, अंतर नॉलेज, स्क्रिप्चरल नॉलेज, आपका क्या रियलाइजेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो रियलाइज सोल है, श्रीपाद महाराज, प्रभुपाद, हमें प्रभु, ऐसे बहुत डिवोटीज है, उनको फॉलो करना है हमें, तो हम जरूर हमेशा खुश रहेंगे। और एक एग्जांपल, टाइम है आई होप, और एक एग्जांपल उसका एक समरी करेंगे फिर खत्म, ठीक है। लास्ट एग्जांपल, एक गरीब था, बहुत गरीब, बुद्धदेव को सब लोग कुछ ना कुछ गिफ्ट कर रहे थे। वो गरीब आया, एक एप्पल आधा खाया था, देखा सब लोग दे रहे हैं, बहुत गरीब है, वो क्या करे क्या करे? उसने क्या किया ना, वो जो आधा एप्पल था वो दे दिया बुद्धदेव को। बुद्धदेव ने, महात्मा बुद्ध ने सब चीज को साइड कर दिया और वो झूठा एप्पल को खा लिया। सब शॉक, डिसाइपल्स वेरी, बुद्धदेव आपने ये क्या किया? झूठा एप्पल खा लिया? क्यों? इतनी सारी अच्छी चीज मिले थे आपको, आपने ये चीज क्यों लिया? बुद्ध ने क्या कहा? वो जो आप लोग दे रहे थे ना, वो आपके कैपेसिटी से कम था, लेकिन जो गरीब ने दिया ना, उसके कैपेसिटी में वही था। मतलब वो एप्पल ही उसके पास था, उसके पास और कुछ नहीं था, तो उसने अपना 100% दिया और इसलिए बुद्ध ने एक्सेप्ट किया। सिमिलरली भगवान के प्रति हमें अपना 100% देना है। सोचना नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया, कि कुछ हुआ क्या, ऐसा नहीं सोचना है। अपना 100% देना है शुद्ध भक्त के संग में और शास्त्रों के अनुसार, तो भगवान जरूर प्रसन्न होंगे, ठीक है। ठीक है, अभी अराउंड समरी लेके थोड़ा एक स्टोरी से मैं समझा के खत्म करूंगा, छोटा सा। ठीक है, बोलते हैं ना जब भगवान का इच्छा हो तो क्या करे। तो मेरे कुछ बच्चे थे, अब प्रभु जी ने कहा कि 15 मिनट ऑफरिंग में जो भी हो, तो मैं भी फिर भी 10 मिनट्स लूंगा, मैं ज़्यादा नहीं, आई होप। ज़्यादा एक्सटेंड किया तो करताल मृदंग है, आके ऐसे बजा देना आपको, ठीक है। तो बुद्ध ने क्लियरली क्या हुआ, वेदास को रिजेक्ट किया। अब इसको हम थोड़ा अच्छा से समझेंगे क्या हुआ। ये एक भगवान का एक लंबा प्लान था, ये प्लान को मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बड़ा अच्छा लग सकता है मे बी, ये प्लान को मैं समझाना चाहूंगा। अब क्या हुआ, मैं स्टोरी आप ध्यान से देखिए स्टार्टिंग से। परीक्षित महाराज जब थे, कली एंटर नहीं कर पाया, क्योंकि परीक्षित महाराज एक अच्छे राजा थे, कली एंटर नहीं कर पाया। परीक्षित महाराज गए, कलियुग स्टार्ट हुआ, फिर जब कली हावी हुआ तो क्या हुआ, बुद्धदेव आए। बुद्धदेव ने क्या किया, शास्त्रों को नेगेट किया। बट ये तो ठीक नहीं है कि वो भगवान है, भगवान शास्त्रों कैसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, शंकराचार्य आए थे, सब जानते हैं शंकराचार्य को ना। शंकराचार्य ने क्या करा, कौन बोल पाएंगे? उन्होंने वापस वो वेदास को रीएस्टैब्लिश किया।
वापस उन्होंने कहा कि ये वेदास ही सब कुछ है, वेदास भगवान का वाणी है, वेदास को ही मानना है। आप बुद्ध लोग जो है जहां जाना चाहिए, नेपाल नेपाल बिहार, यहां नहीं रह सकते, डायरेक्ट उन्होंने कहा शंकराचार्य। फिर क्या हुआ, माधवाचार्य आए। माधवाचार्य ने क्या कहा, अद्वैत द्वैत फिलोसॉफी। द्वैत फिलोसॉफी मतलब शंकराचार्य ने क्या कहा था एक्चुअली कि हम जो जीव है और जो भगवान है दोनों समान है, जीव भी भगवान है, ये शंकराचार्य ने कहा कि उस समय का माहौल ऐसा था, तो उन्होंने इसलिए ऐसा कहा। फिर माधवाचार्य जब आए तो उन्होंने क्या समझाया, और डिटेल में समझा कि नहीं, जीव अलग है, भगवान भी अलग है, जीव कभी भगवान नहीं बन सकते। लेकिन ये भी नहीं मजा आ रहा था। फिर क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने क्या कहा, द्वैत अद्वैत फिलोसॉफी दिया। क्या दिया है फिलोसॉफी, कि भगवान और जीव एक भी है और अलग भी है। कैसे बोले, एक कैसे है, कोई बोलिए। हाँ, समुद्र के पानी जब लेंगे थोड़ा सा तो पानी का गुण तो रहता है ना। एग्जाम्पल क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, दो वर्ड अगर लेंगे अगर समझ पाएंगे। हाँ, परिमाण के हिसाब से। क्वालिटी में देखोगे तो हमारे पास भगवान का क्वालिटीज है, उस हिसाब से हम भगवान से समान हैं। लेकिन हम भगवान से किस प्रकार अलग हैं, हम भगवान के क्वांटिटी मतलब जिस ऐश्वर्य भगवान के पास है उतना ऐश्वर्य हम कभी नहीं पा सकते। थोड़ा इसको मैं और समझाना चाहता हूँ, एग्जाम्पल दे के आपको शायद और समझ में आएगा। क्या हुआ ट्रेंड, एक कार जा रहा है रॉन्ग डायरेक्शन में, आप क्या करोगे, डायरेक्ट पकड़ के उल्टा पाओगे, नहीं कर पाओगे। आप क्या करोगे, पहले गाड़ी को रोकोगे, फिर क्या करोगे, घुमाओगे, फिर क्या करोगे, आगे बढ़ाओगे, फिर क्या होगा, वो डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। समझ में आया। अब इस फिलोसॉफी में समझिए क्या हुआ। गाड़ी गया मतलब पूरा अहिंसावादी, पूरा हिंसा हो गया था, बढ़ गया था। बुद्ध ने क्या किया, रोक दिया। समझ में आया, गाड़ी के एग्जांपल में रोका, करना जरूरी था ना। सडनली अगर हाईएस्ट फिलोसॉफी देंगे तो पलट जाएगा, है ना, तो रोक दिया। फिर क्या हुआ, शंकराचार्य आए, उन्होंने क्या किया, पूरा उलट फेर। इन्होंने कहा वेदास को नहीं मानना, इन्होंने कहा वेदास को मानना है, उल्टा दिया। अब थोड़ा अलाइनमेंट आया। अब फिर माधवाचार्य आए, उन्होंने क्या किया, आगे बढ़ाया। कैसे बढ़ाया, कि भगवान और जो मैंने कहा उन्होंने आगे बढ़ाया। फिर चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने क्या किया, हमको शुद्ध कृष्ण प्रेम दे दिया। वो कृष्ण प्रेम कैसे हम प्राप्त कर सकते, किस महामंत्र से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ में आया बुद्ध देव क्यों आए, आई होप समझ में आया होगा इस एग्जाम्पल में। नहीं आया, और एग्जाम्पल देता हूं चलो। और ये कार वाला एग्जाम्पल ज्यादा मैच करता है, अभी वाला एग्जाम्पल उतना नहीं मैच करेगा, फिर भी आई होप आपको समझ में आएगा। यहाँ पे कोई भी डायबिटीज लोग हैं, मतलब शुगर पेशेंट, मेरी वाइफ को छोड़ के ठीक है, जितने भी हैं। डायबिटीज में क्या होता है ना, जब उसको 10 लड्डू सपोज पसंद है, होता है मीठा ज्यादा पसंद, जिसको डायबिटीज होता है ना उनको मीठा बहुत पसंद है। तो जैसे उसको 10 लड्डू खाना पसंद होगा, डॉक्टर क्या बोलेंगे, सब बंद कर दो, यही ना बोलेंगे, ना बोलेंगे नहीं तुम 5-5 खा सकते हो। तो वो पेशेंट क्या करेगा, डॉक्टर ने बोला 5 खाओ, मैं कितना खाऊंगा, 8-9 तो खा ही सकता हूं। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, डॉक्टर क्या करते हैं, रुको, एक भी मिठाई आप नहीं खाओगे, यही ना बोलेंगे। बुद्ध ने भी वही किया। फिर क्या करेंगे, जैसा इंप्रूवमेंट होते रहेगा, ठीक है आपसे आप 4 खा सकते हो, फिर बढ़ाएंगे धीरे धीरे, देख के कंडीशन देख के करेंगे। यही चीज हमारे आचार्य लोग ने किया। समझ में आया, आई होप इससे समझ में आता है कि बुद्ध देव कौन है, कितना इंपॉर्टेंस है बुद्ध देव का। ठीक है, अभी हम समझ एंड करेंगे। जीव गोस्वामी का जो पॉपुलर दशावतार स्तोत्र का जो बुद्ध देव वाला पार्ट है ना, उसको सिर्फ गायन करेंगे 2-3 मिनट 5 मिनट, फिर क्लास को खत्म करेंगे। हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आया। अगर कुछ अपराध हुआ तो मुझे माफ करिएगा। अभी हम वो छोटा सा भजन
सिर्फ बुद्धदेव वाला पार्टी करेंगे। और मोबाइल खोल सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं। निंदसि यज्ञ विद अहह श्रुतेर जातम सदय हृदय दरसित पशुघातम। निंदसि विधे अहह श्रुति जातम सदय हृदय दरसित पशुघातम। निंदसि यज्ञ विधेर अहह श्रुति जातम सदय हृदय दरसित पशुघातम। निंदसि यज्ञ विधेर अहह श्रुति जातम सदय हृदय दरसित पशुघातम। केशव देता बुध शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। केशव देता जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जयो केशव देता भूत शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। केशव जय जगदीश हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरे। जयो प्रभुपदा जयो प्रभुपदा जयो प्रभुपदा। जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा।
गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर। इस श्लोक का मतलब है, हे केशव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे भगवान हरि, जिन्होंने बुद्ध का रूप धारण किया, आपकी जय हो। हे करुणामयी बुद्ध, आप वैदिक यज्ञ के नियमों के अनुसार किए जाने वाले निर्धन पशुओं के वध की निंदा करते हैं। लॉर्ड बुद्ध देव की जय, श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। कुछ अनाउंसमेंट होगा?